So everyone note down this today's class we're going to begin. You chopped a chapter called relations, okay, and it's a very interesting chapter. Given that you write all the board books and all the classwork which I gave you the class to do, if you complete all this classwork, then only you feel very interesting. So let's begin with the basic concept. मतलब हम लोग ऐसे करते हैं कि तुम लोग क्लास 11 में कुछ किया ही नहीं. मतलब हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस इस तरीके से हम लोग करेंगे कि तुम लोगों ने क्लास 11 में कुछ किया ही नहीं. So let us start with the most basic concept which you require in relations and functions भी ये एक ही चैप्टर है relations and functions. तो सबसे पहला चीज है ordered pair. Now what is the meaning of ordered pair in relation? See, when we say ordered pair, it is nothing but the two components written in this format, the way I have written inside the first bracket, separated by comma, where the first component represents the x coordinate and the second component represents y coordinate. Where graphically every ordered pair represents a point. मतलब ग्राफिकली हर एक ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफिकली हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है. और याद रखना कि हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर x, y को y, x कभी भी हम लोग लिख नहीं सकते. We cannot write x, y as y, x because x, y represents a point in xy plane where y, x represents some other point in xy plane. Okay, like for example, you have a point 2, 3. You have ordered pair 2, 3. अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो मुझे एक और पॉइंट मिलेगा and 3, 2 is another point which graphically is a different point. So that's why please make sure that x, y is not same as y, x. Second point, when we say two ordered pairs are equal, when we say that two ordered pairs are equal, under what condition are two ordered pairs equal? मतलब what is the condition for which two ordered pairs are equal? This is my question. कि मतलब किस condition में दो ordered pairs equal होते हैं? They are equal if x coordinate of first is equal to x coordinate of second and y coordinate of first is equal to y coordinate of second. मतलब दो ordered pair तभी equal होगा जब दोनों का x coordinate और दोनों का y coordinate मतलब दोनों का first component और दोनों का second component अगर equal हो तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं that two ordered pairs are equal. All right, now based on this concept you may get a question like this. You may get a question something like this, okay, like find the value of x and y for which these two ordered pairs are equal. मतलब हम लोग को x और y का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये ordered pair और ये ordered pair equal होगा. So if these two ordered pairs are equal, can I say that the x coordinate of the first has to be equal to the x coordinate of second? मतलब 2x किसके बराबर होना चाहिए? 4 and 3y plus 1 किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो? 3y plus 1 minus 8 के बराबर होना चाहिए. तो यहां से x का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहां से y का वैल्यू -3 आ जाएगा. तो अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स पे क्वेश्चन अगर हम एक्सपेक्ट करें एग्जाम में तो एक मार्क्स का इससे ज्यादा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आ सकता है. ओके, दैट टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y. So find the value of x and y means we just have to compare the first component with first and second component with second. तो यहां से हम लोग को x और y का वैल्यू मिल गया. So everyone copied on this board work करिए. So this is the topic you have already done in class 11. Second point is Cartesian product. Now what is Cartesian product? Everyone note down. Suppose you are given two sets. Let us take in set A we have got three elements 1, 2 and 3, and in set B we have got two elements, let's say -1 and -2. और सपोज मान लो हम लोग को बोला जा रहा है फाइंड A क्रॉस B. क्लियर? अगर मान लो बोला जा रहा है A क्रॉस B, प्लीज डोंट रीड दिस एज A into B.
अगर A क्रॉस B बोला जाए निकालने के लिए तो ये क्या है देखना एक बार। सी A क्रॉस B इज अ सेट नंबर 1। A क्रॉस B एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होगा बताओ तो। फॉर्मेट एक ऑर्डर्ड पेयर के जैसा होगा। मतलब उसका फॉर्मेट क्या होगा कि मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। मतलब जिसको हम एक एलिमेंट काउंट करने वाले हैं वो कैसा होगा बताओ तो। दैट विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे एक एलिमेंट जिसको हम बोल रहे हैं वो एक सिंगल कंपोनेंट है। यहाँ पे जो हम एक एलिमेंट बात कर रहे हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। देखो एक बार समझ में है तो बात। सो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो क्या है, सिंगल कंपोनेंट। यहाँ पे एलिमेंट्स का फॉर्मेट क्या बताओ तो। इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू कंपोनेंट्स। Each element in the set is an ordered pair. So that's why what is A cross B? A cross B is a set in which element is an ordered pair. But each element is what? An ordered pair. Where the first component will belong to set A and the second component of the ordered pair will belong to set B. And okay, and proper and okay, and. तो अगर हम इस चीज को फॉलो करें मतलब हम लोग को ऑर्डर पेयर कैसे फॉर्म करना है। मतलब हम लोग को हर एक एलिमेंट सेट ए का ऑर्डर करना है, पेयर करना है, ऑर्डर पेयर फॉर्म करना है। किस एलिमेंट के साथ बताओ तो। किस सेट के एलिमेंट के साथ। सेट बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर फॉर्म करना है। मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएगा 1, -1 then 1, -2 then we have 2, -1 then 2, -2 then we have 3, -1 and 3, -2. So I hope you all have understood। मतलब मैंने ये जो फॉर्मेट का जो बात किया था वो क्या है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड वी फाइंड दैट B क्रॉस A। अगर पूछा जाए मुझसे B क्रॉस A क्या होगा तो B क्रॉस A के भी अंदर जो एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में ही होगा। ईच एलिमेंट विल बी ऑर्डर्ड पेयर बट हियर द फर्स्ट कंपोनेंट विल बिलोंग टू व्हिच सेट। यस, हियर द फर्स्ट कंपोनेंट विल बिलोंग टू सेट B and the second component of the set will belong to set A। तो इसके अंदर भी एलिमेंट्स कितना होगा बताओ तो। अगर हम इसके साथ पेयर करें तो -1 1 के साथ पेयर होगा, 2 के साथ होगा, 3 के साथ, फिर -2 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो बताओ तो B क्रॉस A के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आएगा कोई बता सकते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन B क्रॉस A। आई एम नॉट राइटिंग कि कितने क्या क्या एलिमेंट्स। अगर हम तुमसे ये पूछे कि B क्रॉस A के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं सो 2 3 जा 6। और अगर हम ये पूछे कि A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा आंसर, वो भी 6। अब देखो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम है। अगर मान लो A and B are two non-empty set, please listen here, if A and B are two non-empty set then A क्रॉस B का जो कार्डिनल नंबर होगा और B क्रॉस A का जो कार्डिनल नंबर होगा वो सेम होगा, लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, विल बी डिफरेंट। देखो एलिमेंट्स डिफरेंट है लेकिन अगर हम इसके अंदर एलिमेंट्स दिखाएं तो एलिमेंट्स डिफरेंट होगा। -1, -1 ये डिफरेंट एलिमेंट है, -1, -2 इट्स अ डिफरेंट एलिमेंट, -1, -3 इज अ डिफरेंट एलिमेंट। बट वी फाइंड दैट इसके अंदर जितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर भी उतना ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो एक बार ये कॉपी करो फटाफट। ओके, तो यहां से तुम लोग को ये कांसेप्ट मिला कि एक मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। दो सेट का मतलब दो सेट दिया तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं या B क्रॉस A, या अगर तुमसे पूछा जाए कि B क्रॉस B निकाला जाए तो क्या होगा। Anyone who can tell me how to find out B cross B? Yes. What will be the elements? So अगर मान लो तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, एक और B लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक एलिमेंट ले लिया और उसको दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट के साथ पेयर कर दो। -2 लिया, -2, -1, -2, I hope this is clear now? ओके, तो फटाफट ये सारी चीज कॉपी करो। हम लोग इसके बाद दूसरा टॉपिक करेंगे वो है रिलेशंस। कि रिलेशंस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। Now third topic is relations. What is the relations? Let's see now. सबसे पहला चीज देखो, तुमको रिलेशंस समझने के लिए तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर ये चीज होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना नहीं हो पाएगा। एक और चीज तुमको जानना चाहिए वो ये है, व्हाट इज सबसेट, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एक बार ध्यान से नोट करना सबसे पहले मैं ये एक बार बता दूं बिफोर स्टार्टिंग। सो टेल मी एवरीवन, सपोज A is a set
in which the elements are 1, 2, 3, let's say. You have another set B in which the elements present are again 1, 2, 3. You have another set, let's say D, in which the elements are 1, 2, 3, 4, 5. Everyone note down. हम लोग क्या लिखेंगे देखना एक बार. See, I can say that A is a subset of B. Now, what is the meaning of A is a subset of B? A is a subset of B का मतलब ये हुआ all the elements of A is present in B. Stop. इसके आगे कुछ दिमाग मत लगा. All the elements of A is present in B. क्या A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है? मतलब आगे दिमाग मत लगाना कि सर B में क्या है क्या नहीं. हमको B से मतलब ही नहीं है ना. हमको मतलब है कि A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है या नहीं. अगर A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है मतलब हम सबसेट का सिंबल दे सकते हैं. अब बताओ तो तुम, मतलब इसके हिसाब से लेफ्ट वाले सेट का सारा एलिमेंट राइट वाले सेट में प्रेजेंट होना चाहिए. करेक्ट एवरीवन? सो कैन आई से दैट B is a subset of A? Yes, can I say that B is a subset of A? मतलब क्या B का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है? क्या B का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है? Yes, है. B का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है, so I can say that B is a subset of A. क्या A का सारा एलिमेंट D में प्रेजेंट है? Yes. क्या B का सारा एलिमेंट D में प्रेजेंट है? Okay, yes. Now क्या D का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है? So this is wrong. मतलब ये गलत है क्योंकि D का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है नहीं, बट बाकी जितना चीज हम लोगों ने लिखा वो सब ट्रू है. A का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है. Yes, sir. So I hope you have understood the meaning of subset, right? मतलब सबसेट में जब हम ये सिंबल यूज करेंगे ना तो लेफ्ट वाले जो सेट है उसका सारा एलिमेंट राइट वाले सेट में प्रेजेंट होना चाहिए. अब बाकी तुम यहाँ पे दिमाग लगाने चले गए ना तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा. हमको उससे मतलब ही नहीं है. ठीक है, अब देखो, आउट ऑफ ऑल दीज, लिसन, आउट ऑफ ऑल दीज केसेस, अगर सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे एक केस लिख रहा हूँ, देखना एक बार, जहां पे देखो एक बार ध्यान से. सपोज इफ आई से, let me take suppose set E and set F. Okay? There are two sets, two non-empty sets E and F. There are two non-empty sets E and F. You know what is the meaning of non-empty set? What is the meaning of non-empty set? Tell me. मतलब जिसके अंदर कुछ तो एलिमेंट होगा, एक कम से कम एक एलिमेंट होगा, खाली नहीं होगा. तो सपोज अगर हम ये बोलते हैं कि E is a subset of F, ठीक है, और एक और मैं लाइन लिखूंगा, and दे रहा हूं, और नहीं, n of E is not equal to n of F. What do you conclude from these two things? Can you tell me? Can you explain me clearly? Yes. मतलब यहाँ से equal elements, an equal number of elements, but all the elements present in E are there in F. But the vice versa is not. Yeah, exactly. Vice versa is not possible. मतलब E का सारा एलिमेंट F में प्रेजेंट है, और यहाँ से ये पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E is not equal to F means which set has got more number of elements? F के अंदर ज्यादा एलिमेंट है. अगर जहां पे ये दोनों सिचुएशन एक साथ एग्जिस्ट किया, then it implies E is a proper subset of F. Is not a. तो प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? अब जब हम प्रॉपर सबसेट का सिंबल देंगे तो वहां पे हम राइट वाले सेट को भी दिमाग में रखना पड़ेगा. सबसेट के सिंबल में ये सब कुछ नहीं देखना है. कि क्या देखना है कि लेफ्ट के सारे जो एलिमेंट जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स राइट वाले सेट पे प्रेजेंट होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए. अब ये बिलोंग का सिंबल क्या होता है? बिलोंग्स टू. ये होता है सिंबल बिलोंग्स टू का. ठीक है, सेट में बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? ये ऐसे मत लिख देना बिलोंग्स टू, इतना लंबा नहीं. बिलोंग्स टू मतलब ये. ठीक है, देयर एग्जिस्ट मतलब ये हो गया सिंबल देयर एग्जिस्ट का. ई का उल्टा क्या होता है? देयर एग्जिस्ट. समझ में आया तो बात? और ये जो हो गया बिलोंग्स टू सिंबल हो गया. तो ये सब सिंबल्स पता होना चाहिए तुम लोगों को, इस सिंबल का मतलब क्या होता है. समझ में आया तो बात? दूसरा चीज ये हो गया तुम्हारा, दूसरा बात ये हो गया तुम्हारा सबसेट का सिंबल. ठीक है, अब ये हो गया प्रॉपर सबसेट का सिंबल. तो मुझे बता सकते हो तुम लोग यहाँ पे कौन कौन से दो सेट में हम बीच में प्रॉपर सबसेट का सिंबल दे सकते हैं? कैन यू टेल मी? A and B. I can say that out of all this, I can say that A is a proper subset of B. I can say that B is a proper subset of B, but other cases are not possible. I hope it is clear to everyone. So I want everyone to first copy with this. Make this as point number 4.
इसको पॉइंट नंबर 4 बनाओ, इसको पॉइंट नंबर 5, फिर हम लोग पॉइंट नंबर 5 को अभी करेंगे, बिकॉज ये एकदम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये अगर सबसेट प्रॉपर सबसेट्स का अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो फिर तुम रिलेशंस समझ में नहीं आएगा कि रिलेशंस होता क्या है। सबसे पहले अगर मैथमेटिकली देखें रिलेशन, अगर हम रिलेशंस का अगर हम मैथमेटिकली देखें तो क्या होता है, देखिए इफ A एंड B, पहले हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आराम से इसको देखेंगे कि होता क्या है। इफ A and B are two non-empty sets, okay, and R is a relation such that R is a relation, what is R? R is the name of the relation, R क्या है? Relation का नाम, and it is a relation where the elements are in ordered pair format, where these two components are associated. दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है वो कैसा होगा? They are associated by a certain relation. They are associated by a certain condition, we can say. Where A and B, where we can say that A and B are related by a certain condition, by a certain given condition. And the given condition may be in the form of inequality, it can be in the form of equation, मतलब it can be in any mathematical form, it can be any logical form, we can also say, मतलब कोई भी logical form में हो सकता है, मतलब उस logic को, उस condition को अगर satisfy करे तो हम उसको क्या करेंगे, उस relation R के अंदर लिखेंगे, where we can say that A comma B, where A belongs to set A, just a minute, where A belongs to set A and B belongs to set B, means what? It means that relation R is a subset of, it's a subset of A cross B. अब ये है क्या, हम एक बार बताते हैं, ध्यान से फिर से एक बार देखना, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल से। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। सबसे पहला चीज, देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। अब रिलेशन R क्या है, रिलेशन R इज द एसोसिएशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ टू सेट्स, एसोसिएशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ टू सेट्स, मतलब दोनों सेट के बीच का जो एलिमेंट्स है उनके बीच का एसोसिएशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में। और वो जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखा है, क्या वो कुछ भी लिख देंगे, नहीं, वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर का जो कंपोनेंट्स है, आई मीन उस ऑर्डर्ड पेयर का जो कंपोनेंट्स है वो जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन को सैटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ए और बी एक स्पेसिफिक कंडीशन जो उस सम में दिया गया है उस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा, तभी जाके हम उसको a b बना के उसको R के अंदर लिखेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सम, ये ज्यादा क्लियर हुआ, एक सम से एक एग्जांपल देखना, सपोज R इज अ रिलेशन, आपने R के नीचे क्या लिखा है, n, और सर यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी इक्वेशन या any mathematical, I mean statement, we can say any mathematical statement, okay, not only inequality, not only I mean equation, it can be any mathematical statement, मतलब हम बोल सकते हैं, मतलब उस mathematical statement को satisfy किया a और b, तभी जाके हम उसको a b के फॉर्मेट में, मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में रिलेशन R के अंदर लिखेंगे, ओके। एंड अगर मान लो R a to b है, व्हाट डू यू मीन बाय R a to b, मतलब जो पहला कंपोनेंट है वो सेट A को बिलोंग कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट सेट B को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ऐसा होना ही है कि जो रिलेशन R है इट इज अ सबसेट ऑफ, जो रिलेशन R है इट विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इट विल हैपन। क्यों मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल से, देखना एक बार ध्यान से। सपोज इफ आई से R is equal to x comma y such that x square equals to y, x belongs to set A, y belongs to set B, सेट A के अंदर एलिमेंट्स है, मान लो सेट A के अंदर एलिमेंट्स है -1, 2, 3, 0, 1, -2, और सेट B के अंदर एलिमेंट्स है, मान लेते हैं 1, लेट्स से 0, 1,
2 6 7 10 लेट्स ठीक है। अब एक बात बताओ तुम लोग, ध्यान से नोट करना है बस, जस्ट लिसन हियर वेरी केयरफुली। R is a relation, so अगर हम तुमसे ये बोलेंगे लीस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन R, least LIST, least all the elements of relation R, can you tell me what are the elements are you going to least here? You know that you are going to least in ordered by format, that is very true. You are not going to least any elements randomly. What this is also true. The elements has to be from A to B. What do you mean by from A to B? The first component जो है that particular element must belong to set A, and the second component जो element है that must belong to set B. Again there is a condition, what, that x square must be equal to y, मतलब x का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। तो एक बात बताओ, हमको पता है कि x जो पहला कंपोनेंट है वो सेट A को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, x का वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा बताओ तो, 1y है। क्या y जो है वो B में बिलोंग कर रहा है, चेक करो तो। मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -1, प्लीज कैन यू टेल मी, क्या मैं लिख सकता हूँ -1, या मैं लिख सकता हूँ 1, -1, कौन सा ट्रू है? क्यों -1, बिकॉज x square is equal to y, where x is belonging to set A and y is belonging to set B। मतलब अगर हम मान लो इन दोनों को पिक करेंगे, ठीक है, तो x स्क्वायर जो है y के बराबर, समझ में आया बात मेरा? तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, समझ में? अगर हम दूसरा एलिमेंट देखते हैं जैसे 2, x का वैल्यू मान लो 2 ले लिया मैंने, अब मैं x जो लिया मैंने वो क्यों सेट A से लिया ये ना पता है मुझे, ठीक है। मतलब मुझे ऑर्डर्ड पेयर जो बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी फ्रॉम A to B। मतलब जो मुझे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना है दैट इज फ्रॉम A to B, नंबर 1 satisfying this condition, it must satisfy this condition also, all right everyone। तो अगर हम मान लो ये ले लेते 2, तो 2 का स्क्वायर 4, अब बताओ तो 4 क्या बिलोंग कर रहे हैं y, मतलब y जो है 4 क्या वो B में बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, मतलब इसको मत लिखो, इसको हम लोग सेट मतलब रिलेशन R के अंदर लीस्ट नहीं करेंगे, लीस्टिंग नहीं करेंगे, मतलब लिखेंगे नहीं। अब नेक्स्ट ले लेते हैं मान लो 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, 0 का स्क्वायर 0 बिलोंग कर रहे हैं तो 0,0 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 1,1 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद -2 का स्क्वायर 4 यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, तो R के अंदर क्या क्या बिलोंग करेगा, क्या क्या लिस्ट करेंगे हम लोग, ये सारे एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे। समझ में आया मेरा बात? R के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे हम लोग, ये सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे। लेकिन मुझे तुम लोग ये बता सकते हो कि अगर मैं, एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूं, इस कंडीशन को हटा दूं, तो हम लोग पॉइंट नंबर 5 कर रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट होगा बताओ तो? 1 2 3 4 5 जो अभी तक हम लोगों ने किया, 5th नंबर पॉइंट। अगर मैं ये कंडीशन हटा दे तो कौन सा पॉइंट हुआ बताओ तो? कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ कि? और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा? सारा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, जो सेट A टू सेट B से हम लोग ऑर्डर पेयर फॉर्म करके जो हम लोग बनाएंगे वो सारा आ जाएगा A क्रॉस B के अंदर। तो अगर हम A क्रॉस B देखें, इस कंडीशन को हटाने के बाद जो भी एलिमेंट्स आएगा वो A क्रॉस B के अंदर चला जाएगा। तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूं कि R, if R is from A to B, so can I say that R is a subset of A cross B? क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म कहां से, कौन से सेट की, कौन से सेट को किसके साथ एसोसिएट किया है, फ्रॉम व्हाट टू व्हाट। आई मीन पहले कौन सा रखा है, फिर दूसरा कंपोनेंट किस सेट से रखा है? पहला जो कंपोनेंट है वो सेट A से रखा है और दूसरा कंपोनेंट B से रखा है, मतलब A to B हुआ ना। इसका मतलब अगर हम ये देखें तो जो R जो है रिलेशन, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। समझ में? इफ इट इज A to B, if relation is A to B, पहला A से बिलोंग कर रहा है, दूसरा B से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए मैं A to B बोल रहा हूं। अगर वही मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, X belongs to B, Y belongs to A, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? B to A। उस केस में रिलेशन R will be a subset of what? मतलब हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि रिलेशन R के अंदर हम लोग वो सारा फिल्टर्ड एलिमेंट्स लिख रहे हैं, सुनना बात को ध्यान से, वो सारे फिल्टर्ड एलिमेंट्स लिख रहे हैं A क्रॉस B का, जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेंगे। इज इट ट्रू और नॉट? टेल मी। समझ में आया बात? तो आई थिंक रिलेशन का मतलब समझ में आया। तो एक बार सबको यहां तक मैंने कॉपी करो, जस्ट हम लोगों ने बिगिन किया है, जस्ट वी हैव स्टार्टेड, ये सब चीज 11 का है, बस हम लोगों ने स्टार्ट की है। सो एवरीवन नोट डाउन,
इसका सबसे पहले अगर मान लो बोला जाए एरो डायग्राम बनाने के लिए, तो देखो हम लोग एरो डायग्राम में क्या करेंगे, पहले ए लिखा फिर बी लिखा मैंने, ठीक है। एरो इस देखो एरो मैंने ए टू बी दिया, बताओ तो ए टू बी क्यों दिया? बिकॉज यहाँ पे एसोसिएशन जो है सेट ए का एलिमेंट को सेट बी के साथ मैंने एसोसिएट किया। समझ में आया बात? अब देखो सेट ए के अंदर जितना एलिमेंट्स है वो सारा लिखना पड़ेगा, सेट ए के अंदर जितना एलिमेंट्स है वो सारा मुझे लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लिखें तो ये हो गया तुम्हारा 0 -2 -1 0 1 2 3। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 0 1 2 6 7 10। अब कौन कौन से दो एलिमेंट्स रिलेटेड है? -1 1 के साथ, 0 0 के साथ, 1 1 के साथ। समझ में? तो इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम। अब देखो इसके अंदर आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है व्हाट इज डोमेन ऑफ अ रिलेशन। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर, तो डोमेन का मतलब क्या होगा देखना है। इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन आर। जो रिलेशन आर का जो पहला कंपोनेंट है, इस पहला कंपोनेंट को हम लोग एक सेट के अंदर लिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ तो? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। सो डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या क्या होगा? It will be -1, 0, 1. Clear? Or we can also say this way that all the pre-images, इसको pre मतलब इस पे हम लोग और अच्छे से आएंगे फंक्शंस में और अच्छे से क्लियर होगा। याद रखना 1 का pre-image क्या बताओ तो? -1 को हम लोग 1 का pre-image बोलते हैं। और 1 जो है ये सेकंड कंपोनेंट है, ये किसका इमेज है बताओ तो? -1 का। मतलब -1 का इमेज 1 है और 1 का प्री इमेज क्या है? मतलब प्री मतलब अगर हम जैसे मान लो ये बोलते हैं कि y का प्री इमेज क्या है, तो पहले वाला प्री मतलब जहां बोल रहे हैं तो प्री मतलब उसके पहले वाला। और व्हाट इज द इमेज? इमेज मतलब तो बाद में होगा ना, इमेज तो फॉर्म होगा। तो फॉर्म कहां पे होगा? x का इमेज y, मतलब सेकंड वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? x का इमेज हुआ। और y का प्री इमेज क्या है? वो प्रीवियस वाला हुआ। समझ में आया बात? मतलब 1 का प्री इमेज -1, 0 का प्री इमेज 1 का प्री इमेज -1 का इमेज 0 का इमेज। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस ऑफ द रिलेशन। जो रिलेशन का जो प्री इमेजेस है इसके सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखेंगे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? डोमेन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज इज अ सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिलेशन। तो 1 0 1 दो लिखे क्या? 1 0 1 क्यों? 1 दो बार लिखे, उसको क्या करेंगे हम लोग? एक ही बार लिखेंगे 1 0। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कोडोमेन। याद है किसी को क्लास 11 में कोडोमेन का मतलब क्या होता है? डू यू रिमेंबर व्हाट इज कोडोमेन? रिलेशन आर का कोडोमेन मतलब जो सेकंड कंपोनेंट है वो किस सेट को बिलोंग कर रहा है डायरेक्टली बताओ तो पूरा बी हो गया कोडोमेन। तुमको बी पूरा लिखने का पूरा डायरेक्ट बी, मतलब जो सेकंड कंपोनेंट होता है ना वो पूरा सेकंड कंपोनेंट को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? कोडोमेन लिखते हैं। I hope it is clear to everyone. With the help of one example, we'll take 1 or 2 more examples. Then we will move on to the types of relations. Types of relations में क्या है? Void, universal, identity relation, बहुत कुछ है। तो एक बार पहले ये कॉपी कर लेना और यहाँ तक जिसका भी जो डाउट है वो क्लियर कर दो। I'll just give you one more example. Let us say a relation R x, y. X minus y equals to 0. X belongs to set A, y belongs to set B. Elements in set A are 1, elements in set A are let's say -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. 4 as well. In set B के अंदर elements है let's say 1, 2, 4, 5, 6, 7. Everyone, point number 1, list all the elements of relation are number 1. Number 2, find the arrow diagram. Number 3, find domain, codomain, domain, range and codomain. Everyone do it first. सबसे पहले क्या है बताओ तो? इस मेथड को क्या बोलते हैं बताओ तो? हम लोग सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या दो फॉर्म होता है बताओ तो रिप्रेजेंट करने का? व्हाट आर? Roster form and stack filter. रोस्टर फॉर्म एंड टैबुलर फॉर्म है कि नहीं? रोस्टर फॉर्म एंड टैबुलर फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म है?
सेट बिल्डर फॉर्म होता है एक, और एक क्या होता है, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म एंड टैबुलर फॉर्म तो एक ही होता है। रोस्टर फॉर्म एंड टैबुलर फॉर्म क्या होता है, एक ही होता है, और एक क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो ये कौन सा फॉर्म है बताओ तो, और तुमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर बोलो या टैबुलर बोलो, समझ में, मतलब लिस्ट करना है। तो चलो ये करो तुम लोग, लिस्ट करो एलिमेंट्स को, एरो डायग्राम बनाओ, उसके बाद रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज तीनों निकालो। चलो so everyone note down the elements will be, what are the elements, 1,1, 2,2, 4,4, इतना ही होगा सर, है कि नहीं। उसके बाद वो तुम्हारा एरो डायग्राम तो पता ही है सबको, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा बताओ, सेट भी, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इसको कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है किसी को। कोडोमेन मतलब जो तुम्हारा जो तुम्हारा सेकंड कंपोनेंट है, जिस सेकंड कंपोनेंट जिस सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब जिस सेट में तुम्हारा इमेज आएगा वो सेट ही पूरा कोडोमेन, ठीक है। तो अपना इमेज किसमें बिलोंग करेगा, इमेज ऑब्वियसली बिलोंग करेगा सेट बी, तो पूरा सेट बी हो गया कोडोमेन। लेकिन सिर्फ इमेज को क्या कहते हैं, उस सेट में सारा एलिमेंट तुम्हारा, उस सेट में सारा एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होगा। क्या सेट बी में सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होगा, किस किस एलिमेंट का प्री इमेज है, 1 का, 2 का नहीं, हाँ 2 का है, और किसका है, 4 का है। तो इसी में सिर्फ 1, 2 और 4 को ही हम रेंज कहते हैं, ये चीज समझ में आ बात। So next, write down the next topic, that is types of relation, मतलब relations का different types। तो पहले लिखो एकदम void relation। So the first one is, तो हम लोग देखेंगे relations का types। So the first one is the void relation, or we can say empty relation। सीधा बात, जिस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं, void relations, that's all। आई थिंक इसका एग्जांपल देने का कोई जरूरत नहीं है, void सेट के अंदर भी तुम लोगों ने पढ़ा है, वही सेम मीनिंग है। मतलब मान लो जो भी रिलेशन दिया रहेगा, वो रिलेशन को देखने के बाद जो भी हम लिस्टिंग करेंगे उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड अ void relation। नेक्स्ट नंबर 2, identity relation। Now what is an identity relation? Listen here। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन के लिए पहला कंडीशन जरूरी क्या है देखना एक बार। सपोज मान लो सेट ए है, जैसे मान लो रिलेशन आ रहा है x, y, x रिलेटेड टू y, कुछ भी मतलब कंडीशन से रिलेटेड होगा, x, y will both belong to the same set। पहला नंबर ये बात याद रखना। मतलब सबसे पहला चीज, आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए सबसे पहले जो दोनों कंपोनेंट है वो एक ही सेट को बिलोंग करेंगे। मतलब ये R on क्या होगा बताओ तो, जैसे हम R on A to B बोलते हैं ना, या B to A, या R on क्या बोलेंगे बताओ तो, इसको क्या रीड करते हैं, इट इज रेड एज R on A। इसको हम क्या रीड करते हैं बताओ तो, R on A। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R on A? R on A का मीनिंग क्या बताओ तो, दैट R is a subset of A cross A। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R on A? मतलब रिलेशन R on A का मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन R है, इट इज अ सबसेट ऑफ A cross A। मतलब जो पहला कंपोनेंट है वो भी सेट ए को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो भी सेट ए को ही बिलोंग करेगा, मतलब सेम ही सेट को बिलोंग करेगा। मतलब आर और बी मतलब आर इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी, दैट्स ऑल। अब देखो ये रिलेशन आर मतलब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखो ध्यान देना। जैसे मान लो आर है x, y, x minus y equal to 0, x, y belongs to a, और सेट ए है मान लो 1, 2, 3। तो एक बार बताओ तो रिलेशन आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएगा बताओ तो? Yes, it will be 1, 1, then it will be 2, 2, and it will be 3, 3। So everyone note down, if R is on A, R on A है तो A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? A के अंदर 3 एलिमेंट है, तो रिलेशन R के अंदर कितने एलिमेंट होना चाहिए पता है? कितना होना चाहिए? 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब R on A है तो A के अंदर कितना एलिमेंट है यहाँ पे? 1, 2, 3, ठीक है। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो जैसे 1 ले लिया,
1 का पेयर करो, 1 को मतलब 1 को उसी का पेयर करो, 2 ले लिया 2 का पेयर करो, 3 ले लिया 3 का पेयर करो, मतलब जितना एलिमेंट्स रिलेशन मतलब सेट ए के अंदर जितना एलिमेंट्स है उतना ही एलिमेंट का पेयर, आइडेंटिटी पेयर, आइडेंटिटी मतलब सिमिलर एलिमेंट्स का पेयर, मतलब R के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर मान लो A के अंदर 1 2 3 है और 3,3 यहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। अगर 1 यहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ सपोज 4 बिलोंग करता है और यहाँ 4,4 नहीं बिलोंग करता, मतलब इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए ध्यान रखना, अगर R on A है, A के अंदर 3 एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट का आइडेंटिटी पेयर बिलोंग करना चाहिए, मतलब ना उतने से ज्यादा होना चाहिए ना उतना से कम होना चाहिए। मतलब अब इसके अंदर एक और चीज अगर हम लिख देना 2,3, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। समझ में मेरी बात? ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए जो अभी मैंने बोला कंडीशन वो सैटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। एक बार ये कॉपी करो रखना। Number 3, what is universal relation? What is the meaning of universal relation? Listen. A relation R on A is said to be universal if R is equal to A cross A. समझ में मेरी बात? अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि a relation R on A is said to be universal when? What is the condition for that particular relation to be a universal relation on A? अगर मान लो वो relation के अंदर जितना एलिमेंट्स है and because it is R on A, और अगर मान लो A क्रॉस A के अंदर जितना एलिमेंट है वो अगर दोनों बराबर होता है, मतलब वो कैसा रिलेशन हो गया था? वो एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए सेट है 1, 2, 3 एंड सपोज R is a relation on A, R is a relation on set A, मतलब R is a relation on A का मतलब क्या हुआ? R is a subset of A cross A, मतलब R के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा उसमें दोनों कंपोनेंट किस सेट को बिलोंग करेगा? A को ही बिलोंग करेगा। तो अगर R के अंदर सपोज 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3,1, 3,2 and 3,3, अगर ये सारा है, कुछ भी मैंने छोड़ा बताओ तो A क्रॉस A के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? अगर हम तुमसे ये पूछे कि A क्रॉस A के अंदर कितना एलिमेंट्स आएगा, सो 9 एलिमेंट्स आएगा। चेक कर लो, 3 एलिमेंट है तो 3 3 9। R के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारा एलिमेंट A क्रॉस A का इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब R कैसा रिलेशन है? इट्स अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल में क्या फर्क है पता है? अगर सपोज A 1, 2, 3 है तो R के अंदर सबका, जैसे ये 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3,3 बिलोंग करना चाहिए। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए सिर्फ ये और ये ही यहाँ पर, ठीक है? और यूनिवर्सल होने के लिए हर एक एलिमेंट का, जैसे R on A है तो A का जितना भी ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा A क्रॉस A से, वो सारे एलिमेंट रिलेशन R के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? मतलब सेट A का जितना भी ऑर्डर पेयर, मतलब A क्रॉस A का अंदर जितने सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो सारे रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेंगे, मतलब तब जाके हम लोग बोल सकते हैं it is what type of relation? Universal relation. I hope it is clear to everyone. Now one more relation is left and that is equivalence relation. तुम्हारे एग्जाम में वही आएगा 4 मार्क्स का, ये सब आएगा 1 मार्क्स का, और इसके बिना तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन कराने में पूरा 1 घंटा लगेगा, इसीलिए हम लोग आज वो करेंगे। विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर 3 तरह का रिलेशन आएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डेडिकेट आवर एंटायर क्लास, एंटायर मतलब जो भी अपना टाइम है, ड्यूरेशन, इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसमें मजा आएगा। सो आई